السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریشہ پارٹ 21۔ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ میرے مرحوم شوہر کا گھر ہے جس پر میں پورا حق رکھتی ہوں۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں ان کی بیوہ ہوں۔ تمہارے حق کی ایسی کی تیسی، تمہیں تو ایک سیکنڈ اور ہم یہاں اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ اور کتنے رنگ دکھانے ہیں تم نے اپنے؟ ارے وہ بیچارہ تمہارے لیے لڑتے لڑتے مر گیا اور تم نے اپنے گندے کام نہ چھوڑے۔ کیا لگتا ہے تمہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہم تمہیں اس گھر میں رہنے دیں گے؟ ان کا انداز طنزیہ تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ آج جواب دے مجھے۔ آخر کس بات کا طنز کیا جا رہا ہے؟ کس چیز کا طعنہ مارا جا رہا ہے مجھے؟ بتائے کیا قصور ہے میرا؟ کون سی چیز ہے جو آپ کے دل میں چبھ رہی ہے میرے بارے میں؟ آخر کون سی ایسی غلطی کی ہے میں نے جس کے لیے آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے بد کردار کہتے ہیں، لیکن شاید آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے بھائی کو شادی کے لیے میں نے نہیں کہا تھا، بلکہ وہ خود میرے پیچھے پیچھے آتے تھے۔ میں نے ان سے شادی سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں تو بس اس مذہب میں آ کر خوش تھی کہ مجھے ایک صحیح راہ مل گئی ہے۔ شادی کے لیے انہوں نے مجھے فورس کیا تھا، مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تھا، مجھے مجبور کیا گیا تھا، اور اس شخص کی محبت کے سامنے میں ہار گئی۔ لیکن آپ لوگوں نے تو میرے کردار کو تار تار کر دیا۔ آپ لوگوں نے میرے معصوم بچے کو ناجائز قرار دیا۔ میں نہیں جانتی کہ کب کس وقت آپ لوگوں نے میرے کردار میں کوئی جھول دیکھا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے کہنے پر کبھی اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ شاید میں آپ کی فضول باتوں کا بھی جواب نہ دیتی، لیکن اب بات میرے بچے کے آخری آسرے پر آ گئی ہے، اور میں آپ کے تو کیا کسی کے بھی کہنے پر یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانے والی۔ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں یہاں ہی رہ رہی ہوں۔ پچھلے 12 سال سے مجھے ان کی جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن آپ لوگ مجھ سے میری چھت تو نہیں چھینے۔ بس ہمارے سامنے کی ڈرامے بازیاں کرنا بند کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہاری باتوں میں آ جائیں گے؟ کیا کیا ہے تم نے اور تمہارے کردار کس طرح کا ہے؟ اگر یہ بتانے کے لیے ہمیں عدالت جانا پڑا نا تو بھی جائیں گے۔ ہم پر، ہمارے بھائی پر یا اس کے اس گھر پر تمہارا اور تمہارے اس بچے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ ہم تمہیں اور تمہارے اس ناجائز کو دھکے مار کر یہاں سے نکالے، بہتر ہے کہ اپنا رستہ ناپو، کیونکہ حاصل تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے باہر کی راہ لے چکے تھے، جبکہ راحل وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے 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 کنیز، مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے۔ کتنے ظالم لوگ ہیں تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہوں نا، میں تمہیں سہارا دوں گا، تمہیں بھی اور تمہارے بیٹے کو بھی، لیکن اس کے لیے میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ تمہیں، راحل صاحب، خدا کے لیے اپنی زبان سے کچھ بھی ادا کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ میں آپ کے مرحوم ماموزاد کی بیوہ ہوں۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ بڑی سمجھدار ہو تم کنیز فاطمہ، ابھی تو میں نے اپنی بات کی ہی نہیں اور تم میری بات کی گہرائی تک بھی پہنچ گئی۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میری آفر محدود مدت کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے اس سہارے کی قیمت صرف ایک رات۔ چٹاخ! وہ کافی دیر کھڑی خود پر ضبط کرتی رہی تھی، لیکن پھر اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ کوشش کیجیے گا کہ دوبارہ یہاں تشریف نہ لائے، ورنہ مجھے مجبوراً پولیس کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولی تو راحل فوراً ہی غصے سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنے منہ پر پڑنے والے اس تماچے کو شاید وہ زندگی بھر یاد رکھنے والا تھا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے سب سے جان چھڑا کر کمرے میں آیا تھا۔ اس کی بے تحابیاں عروج پر تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس اپنی ردم کے پاس پہنچ جائے اور اسے اپنی بے پناہ محبتوں کا یقین دلائے۔ پہلے تو ذریعام نے اسے خوب پھنسا کر رکھا ہے، اسے خوب تنگ کیا، لیکن پھر آخر کار اسے اپنے معصوم بھائی پر ترس آ ہی گیا۔ یا یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ اسے اپنی بیوی کی یاد ستانے لگی اور اسے چھوڑ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور آخر کار وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن اس کی خوشیوں کو مٹی میں ملاتے ہوئے ردم اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے کپڑے چینج کر کے بڑے ہی مزے سے بلینکٹ لے کر بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اچھی امید تو وہ اس سے رکھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اس معصوم کے جذبات کے ساتھ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی، ہاں یقیناً وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ہی ایسا کر رہی تھی، ورنہ وہ اتنی بے رحم تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سوچ کے ساتھ بیڈ کے پاس آیا تھا۔ ردم، ردم، اٹھ جا شیرنی، کیوں ستا رہی ہے مجھے؟ وہ اس کے سر پر سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے بولا تھا، لیکن سامنے اسے گہری نیند میں پا کر اسے گھورنے لگا۔ ردم! اس نے سختی سے اسے پکارا تھا، لیکن جواب نہ آیا، مطلب وہ گہری نیند سو رہی تھی۔
रिदम, तुम अपने महबूब शौहर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। माना कि मैं महबूब शौहर साबित नहीं हुआ, तुम्हारे लिए जालिम साबित हुआ हूँ तुम्हारे हक में, लेकिन यार मैं सारा मदावा करूँगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की है और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की करके तुम्हारे साथ जुल्म किया है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारी इन बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बेहद मध्यम आवाज़ में बोल रहा था, जो रिदम के कानों में तो क्या ही जाती, उसके अपने कानों में भी कम ही सुनाई दे रही थी। उफ, माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल था, इस बात का एहसास उसे आज हुआ था। वो काफ़ी देर उसके चेहरे को देखता रहा। बंद आंखें, धुला धुलाया चेहरा उसकी सारी बेकरारी को रूज पर ले गया था, लेकिन वो जैसे आज उसके हाथ आने का कोई इरादा ही नहीं रखती थी। उसके जज्बात का बेड़ा गर्क करके वो मज़े की नींद ले रही थी। शायद उसे उसकी करतूतों की सज़ा दे रही थी, और शायद उसने कसम भी खा रखी थी कि वो आसानी से बख्शने का कोई इरादा नहीं रखती। आखिरकार थक हार कर वो खुद ही उसके बेड के करीब से उठ खड़ा हुआ और चेंज करने चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट के बाद हुई तो वो उसे इसी तरह से सोती हुई मिली। वो जो उसके दिल में थोड़ा सा शक था कि शायद वो जाग रही है, सिर्फ उसे तंग करने के लिए सोने का ड्रामा कर रही होगी, वो गलतफहमी भी दूर हो चुकी थी। वो उसके जज्बात का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाल चुकी थी और उसके हक पर फातिहा पढ़ के अब मज़े से सो रही थी। तुम्हें इस चीज़ के लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मज़ीद मैं तुम्हें खुद से नफ़रत करने का कोई मौका नहीं देना चाहता, वरना शायज़म शाह अपना हक छोड़ने वालों में से हरगिज़ नहीं है। लेकिन ये तुमने मुझ पर सच में बहुत बड़ा जुल्म किया है रिदम। इसका एहसास मैं तुम्हें ज़रूर दिलाऊँगा। जाओ, क्या याद करोगी, कर लो अपनी नींद पूरी। अब इतना भी जालिम नहीं है तुम्हारे सर्कस आई कि तुम्हारी नींद की भी परवाह ना करे, लेकिन इसका इंतकाम मैं ज़रूर लूँगा, आज नहीं तो कल सही। उसके लबों पर झुकते हुए उसने बड़ी शिद्दत से भरपूर अंदाज में गुस्ताखी की थी। वो जो गहरी नींद सो रही थी, ज़रा सा कसमसाई, लेकिन उसकी नींद न टूटी। यकीनन बहुत थक चुकी थी आज शादी के इन हंगामों में, इसीलिए इतनी गहरी नींद सो रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास अपनी जगह बनाता, उसके नाजुक खुशबू से सजे वजूद को अपनी बाहों में कैद करता आंखें मूंद गया था। दूसरी तरफ जरियाम तेजी से कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ था जब उसे अलमारी में सर दिए पाया। इससे पहले कि वह अपनी चेंजिंग के लिए कोई कपड़े निकालती, उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। काले रंग की खूबसूरत साड़ी में इस वक्त उसका नाजुक दिलकश तरापा उसकी पुरशौक निगाहों का मरकज बना हुआ था। वो कब से बेताबी से कमरे में आने का इंतजार कर रहा था, और आखिरकार वो आ ही गया था अपनी जान के पास। आज अगर मेरा इंतज़ार किए बिना तुम चेंज कर लेती तो कसम से बहुत बुरा हाल करता तुम्हारा। उसकी कमर में बाजू हमाल करते हुए उसे अपने बेहद नज़दीक कर चुका था। और आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करती? उसके गले में बाजू डालते हुए उसने बड़े ही दिलफरेब अंदाज में पूछा था। वो तो उसके अंदाज पर कुर्बान होने को तैयार हो गया। अब इतनी भी जालिम नहीं हो तुम, क्या अपने मासूम शौहर के साथ इतना जालिमाना सलूक करती? उसके रुखसार को अपने लबों से छूते हुए उसने बड़ी ही मोहब्बत से उसकी ब्यूटी बोन को चूमा था, जबकि उसके अंदाज पर वो शर्माते हुए उसके सीने पर अपना सर रख कर के खुद को उसके सुपुर्द कर चुकी थी। उसकी नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में कैद करता वो उसे बेड पर उठा लाया था। अब जरियाम शाह था और उसकी बेपनाह मोहब्बतों को महसूस करती अमाया जरियाम शाह, जो उसकी थी और सिर्फ उसी से थी। दूसरी तरफ, क्या मतलब है आप लोगों का? मैं उनकी बीवी नहीं, ये बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके निकाह में थी, बेवा हूँ उनकी, और उनके जाने के बाद इस घर पर मेरा हक है, मेरे बच्चे का हक है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। आज कुछ लोग उसके घर आकर उसे ये घर छोड़ने की आखिरी वार्निंग दे रहे थे। लीगल नोटिस जारी कर दिए गए थे। अगर आप उनकी बीवी है तो इस बात को साबित करें। इस तरह से आप ये सब कुछ नहीं कर सकती। क्या सबूत है आपके पास कि आप अहमर काज़मी की बीवी थी? निकाहनामा कहाँ है? वो मौलाना कहाँ है जिसने आप लोगों का निकाह पढ़वाया? और सबसे अहम बात, इस निकाह के गवाहान कहाँ हैं? गवाहान को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मौलाना का 3 साल पहले इंतकाल हो गया है और निकाहनामा मेरे पास मौजूद है। वो कहते हुए उठकर अलमारी की तरफ आई थी। थोड़ी देर में वो पूरी अलमारी को खंगाल चुकी थी, लेकिन उसमें से कोई निकाहनामा बरामद ना हुआ। उसे याद था उसने यहीं पर सारे कागजात रखे थे, यहाँ तक कि यहीं पर ये शाम के बर्थ सर्टिफिकेट भी थे।
लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद न थी। यहाँ पर तो ये शाम के स्कूल के कागजात भी मौजूद न थे। ये सब कुछ कहाँ चला गया था? मैंने यहीं पर रखे थे और शायद मैंने कहीं और रख दिए होंगे। मैं ढूंढ कर लाती हूँ, आप बैठिए। वो कहते हुए पूरा घर देखने लगी थी, लेकिन ना तो किसी कागज़ ने उसके घर से मिलना था और ना ही यहाँ से कुछ मिला था। कुछ होगा तो मिलेगा ना सर, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई निकाह हुआ ही नहीं, ये बच्चा अहमर का नहीं बल्कि नाजायज़ किसका है। अहमर के नाजा न जाने किसका है, अहमर के अलावा और भी बहुत सारे मर्दों के साथ। बंद करो अपनी बकवास, खबरदार जो तुमने मेरा नाम किसी दूसरे के साथ जोड़ा। अगर तुम्हें यहाँ मैं अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो मुंह में आए बोलते चले जाओ। ये तरबियत दी है तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें, एक पाक दामन औरत पर इस तरह की घटिया इल्ज़ाम लगाओ। ये तो गैर है, लेकिन आप तो जानते हैं, क्या आपको इस बच्चे में अपने खून की कशिश महसूस नहीं होती? कम से कम आप तो इसकी घटिया चालों में आना बंद करें। रोज़े महशर आपको भी अपने भाई को भी मुंह दिखाना होगा। वो राहत साहब के सामने खड़ी बोल रही थी। तुम हमें इन बातों में फंसा नहीं सकती लड़की, हम तुम्हारी हकीकत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। क्या हम नहीं जानते कि अहमर की मौत तुम्हारे घटिया कामों की वजह से हुई है? वो बेचारा जान गया था कि तुम्हारे किस किस के साथ ताल्लुकात हैं। वो बेचारा तो यही बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए आज वो हमारे बीच नहीं है। वो बहुत नफरत से उसके मुंह पर दहाड़े थे। जब उनके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर उसने राहिल की तरफ देखा था। ये सारे इसी के अल्फाज थे, उसी की प्लानिंग थी। ये सब कुछ उसी ने किया था। न जाने क्यों उसका दिल चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा था। दूसरी तरफ, तुम आज भी यहीं पर रहने वाले हो? वो कमरे में आया तो उसे देख कर कहने लगा। आज भी घर मेहमानों से भरा था कि वो आज भी यहीं रहने का इरादा रखती थी। क्यों, क्या आप अब इस कमरे में अपनी दूसरी बीवी के साथ रहना चाहते हैं? उसका अंदाज तंजिया था। अगर मैं ऐसी कोई ख्वाहिश करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नाजायज़ होगी। वो बेड पर लेटे हुए उसके नाजुक सरापे को अपनी निगाहों के हिसार में लेकर बोला था। उसकी बेबाक निगाहें उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को ठीक करने में मसरूफ थी। हाँ बिल्कुल, आप जो चाहें ख्वाहिश कर सकते हैं, मैं भला कौन होती हूँ एतराज़ करने वाली। मुझे तो अब जल्द ही आप आज़ाद कर देंगे और मैं हमेशा के लिए इस कमरे से चली जाऊंगी। वो ब्रश वहीं पर पटकते हुए अलमारी से कपड़े निकालने लगी। इसमें चीज़ें पटकने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हें वो ब्रश पसंद नहीं है तो आराम से वहीं रख दो, दीदम यूज़ कर लिया करेगी। वो अपना तकिया ठीक करते हुए संजीदा अंदाज में बोला, जबकि वो उसे घूर कर रह गई। मतलब और उसके यूज़ की चीज़ें भी दीदम को देने का भी इरादा रखता था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपना सारा सामान ना उसको दे देती न- सामान उसको दे देती हूँ। वैसे भी अपना शौहर तो मैं उसको दे ही रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें भी देने से मेरा नहीं ख्याल कि मेरे ख़जानों में कोई कमी आएगी। मेरी सारी चीज़ें आप उसके हवाले कर दें। वो खासी तपी हुई थी। पता नहीं तुम्हारे साथ मसला क्या है? पहले मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो हर वक्त मुंह पर 12 बजे रहते थे। अब तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हारी पसंद का काम करने जा रहा हूँ, फिर भी तुम वही सब कुछ करने जा रही हो। मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम चाहती क्या हो। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जो कुछ तुम चाहती थी वही हो रहा है। मैं तुम्हारी पसंद का काम करने जा रहा हूँ और मैंने कब कहा कि मुझे आपसे तलाक चाहिए? मैं यहाँ आपसे माफ़ी पर मांग रही हूँ, अपनी गलतियों की माजरत कर रही हूँ और आप बार बार तलाक की रट लगाए जा रहे हैं मेरे सामने। मुझे तो लग रहा है कि आपको खुद ही मुझसे जान छुड़ाने का शौक है और कुछ भी नहीं। वो जैसे फट पड़ी थी, जबकि खुदा आज पुरसुकून सा उसे देख रहा था। खुदा, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आपके सामने। बहुत गलत बोल गई हूँ मैं हरम के बारे में। मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि हरम के मौजू से हटकर भी मैंने आपकी ज़ात को बहुत ठेस पहुंचाई है। लेकिन वो दीदम, यही तो तुम्हारे साथ मसला है दीशम। तुम रात को कुछ और सुबह को कुछ और होती हो। तुम खुद ही नहीं जानती कि तुम क्या चाहती हो। अगर हरम के मसले से हटकर बात की जाए ना, तो तब भी तुम मुझे कभी अपने हमसफ़र के रूप में चाहती ही नहीं थी। तुम हमेशा से मुझसे नफरत करती हो और वो भी बेवजह। तुम्हारे पास मुझसे नफरत करने की कोई वजह ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे नफरत है। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है? अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया। तुम्हें अपनी मोहब्बत का हकदार बना दिया। तुम्हें इस दिल की मिल्कियत सौंप दी। और तुमने क्या किया? मुझे हवस परस्त कहा। मेरी मोहब्बत को इतने घटिया तरीके से जलील किया। अगर मैं तुम्हें सब कुछ भूलकर माफ़ कर दूं और अपनी सच्ची मोहब्बत की तौहीन का क्या करूं? अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि तुम माफ़ी की हकदार हो। उसके बाद अब तुम दीदम के बारे में कुछ मत कहना। अब तो घर में शादी की बात भी चलना शुरू हो चुकी है और मैं वही करूँगा जो इस घर के बड़े चाहते हैं। बस इतना कहकर वो कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया था।
जबकि दिशम जो सिर्फ उससे एक और मौका मांग रही थी अपने आप में ही शर्मिंदा होकर रह गई। उसने गलत किया था, लेकिन इससे ज़्यादा गलत था ये कि वो हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। कोई भी उसके शौहर की ज़िंदगी में आ रहा था और वो कुछ भी नहीं कर रही थी। सारी गलती उसकी अपनी ही थी। वो किसी दूसरे को अपने और अपने शौहर के बीच में आने की इजाज़त दे ही कैसे रही थी। आपके पास उस निकाह का कोई सबूत नहीं, माजी, कोई गवाहान, कोई निकाहनामा नहीं, और आप खुद को अहमद काज़मी की बेवा कहती है। मैं उनकी बेवा को वकील साहब से हमारा बच मैं उनकी बेवा हूँ वकील साहब, ये हमारा बच्चा है, आप उसका डीएनए करवाएं, सब सच सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा? मुझे यहाँ अदालतों में घसीट कर मेरे महरम शौहर के मरहूम शौहर के भाई पाकिस्तान जाकर क्यों बैठ गए हैं? यहाँ आकर इस केस को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? मुझे मेरे ही घर से निकाल कर वो लोग मुझे यहाँ इस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर चुके हैं। मुझे मेरे बेटे की छत चाहिए, उसका फ्यूचर चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बीमार हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे के पास छत तक नहीं होगी। हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन आप भी समझे, डीएनए चेकअप या इस तरह के मेडिकल टेस्ट का दावा आप अहमद काज़मी पर कर सकती है, लेकिन उनके भाइयों पर नहीं। आपका दावा है कि अहमद काज़मी आपका शौहर था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप उनके किसी बाल या नाखून के साथ भी डीएनए करवा सकती है, रिपोर्ट आपके हक में आ जाएगी, लेकिन हम उनके भाइयों को या उनकी फैमिली में किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हमारे पास कोई एक छोटा सा सबूत तक नहीं है, वो उसे समझा रहा था। अगर मुझे उस घर के अंदर जाने दिया जाए तो शायद मैं कुछ ढूंढ सकूं। वो बेबसी की आखिरी इंतहा पर थी। 3 माह पहले राहत साहब उसे उसके बच्चे के साथ घर से बेदखल कर चुके थे और वो मजबूर होकर उस घर को छोड़ आई थी, लेकिन पीछे ना हटी। उसने उन लोगों पर केस किया था अपने घर के लिए, लेकिन वो साबित ना कर सकी कि वो अहमद के निकाह में है। उसके पास कोई सबूत ही नहीं था, यहाँ तक कि आसपास के लोगों ने भी उसकी कोई गवाही ना दी थी। सबका कहना था कि वो दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन मियाँ बीवी थे ये किसी को पता नहीं था। वो अपने बड़े बेटे पर नाजायज़ होने का टैग नहीं लगा सकती थी। वो उनकी मोहब्बत की निशानी था। पिछले 3 महीनों से वो धक्के खा रही थी। कभी एक जगह जाती तो कभी दूसरी जगह। बीमारी ने उसे थकाना शुरू कर दिया था। ये शाम हर रोज़ उसे अपनी तरफ से अस्पताल भेज कर स्कूल चला जाता, लेकिन वो अस्पताल के बजाय अदालतों के चक्कर काट रही थी। उसके मासूम से बच्चे ने घर छोड़कर उससे कभी शिकवा न किया था, कभी उससे कुछ भी न पूछा। सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था। वो नाजायज़ लफ्ज़ का मतलब भी नहीं जानता था। वो कैसे इस नाजायज़ लफ्ज़ के दलदल में ज़िंदगी भर के लिए झोंक देती। दूसरी तरफ, हरम, बस कर दो मेरी जान, और कितना रोगी कि देखो तुम्हारी आंखें भी सुर्ख होने लगी है। अब एक और आंसू मत बहाना। वो मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि वो मुसलसल उसके पास बैठा उसके आंसुओं को साफ कर रहा था। कुछ मत कहे, कुछ भी मत कहे, आप झूठे हैं। आपने मुझसे झूठ बोला। कितनी खुश हो गई थी मैं कि मैंने अच्छी चाय बनाई है, और आप सब मेरा मजाक बना रहे थे। सब लोग हंस रहे थे मुझ पर, और आप भी अंदर से हंस रहे थे। वो सुसु करती हुई उसे जवाब देती, उसके हाथ में पकड़े टिश्यू के डब्बे से टिश्यू निकालते अपनी नन्ही सी नाक को रगड़ रही थी। हरम जान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? मुझे सच में चाय बहुत अच्छी लगी थी। मुझे क्या पता इसमें चीनी के बजाय नमक है। मेरी हरम के तो हाथ में मिठास है। मुझे तो बड़ा जायका आया था। वो उसे समझाते हुए काफ़ी अनलॉजिक किस्म की बातें कर रहा था, लेकिन हरम के लिए वो यकीन के काबिल न थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको गंदा जायका आया ही नहीं? नमक नमक होता है और चीनी चीनी होती है, चीनी मीठी होती है और चाय मीठी नहीं थी। वो उसे समझाते हुए कह रही थी, हाँ हरमजान, मैं जानता हूँ चीनी मीठी होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी हरमजान के हाथों में मिठास है। मुझे बिल्कुल भी गंदा जायका नहीं आया। अब क्या मैं तुमसे इतना बड़ा झूठ बोलूँगा? अब की बार उसने उसके दोनों हाथ थामते हुए अपने गालों पर रख दिए थे, जिससे वो उसके बेहद करीब आ चुकी थी। वैसे आप ऐसा झूठ बोल तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो भी तो नहीं सकता ना। वो कभी उसकी बातों पर ईमान लाती तो कभी खुद ही रियलिटी में चली जाती। बस बात खत्म। मैं झूठ नहीं बोल सकता ना, तो मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम आंसू मत बहाना। तुम्हारी चाय बहुत अच्छी थी। वो उसके आंसू साफ करते हुए उसका माथा चूमकर बोला, तो ये बात आप सुबह खुदाश वीरू के सामने करिएगा, और वो जो 5,000 मुझे दे रहे थे ना, वो भी लेकर दीजिएगा। वो अचानक ही उसके सीने पर सर रखते हुए लाड से बोली, तो शाम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो उसके इतने पास आ जाएगी ये तो उसने सोचा ही नहीं था। तुम्हें 5,000 मैं दे देता हूँ, उसके गीत अपना हिसार मजबूत करते हुए उसने जैसे ऑफर की थी। आप भी दे दीजिएगा, मैं इनकार थोड़ी ना करूँगी, लेकिन वीरू की जेब से पैसे निकलवाने का अपना ही मज़ा है।
وہ اس کی آفر کو ریجیکٹ کیے بنا خداش سے پیسے نکلوانے کی وجہ بھی بتا چکی تھی، جس پر وہ صرف مسکرا ہی سکا۔ دوسری طرف صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی گردن میں منہ دیے مزے سے سو رہا تھا، پوری طرح اس کے حصار میں قید تھی۔ ردھم کا دل چاہا کہ وہ اسے شوٹ کر دے، وہ اس کی اتنے پاس تھا کہ اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچ چکی تھی، وہ اس کی پناہوں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ اس کا دل تو چاہا کہ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرے، لیکن وہ کسی طرح کا ہنگامہ نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ تھا یا بلڈوزر؟ اتنا وزنی ہاتھ کس کا ہوتا ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ صبح صبح وہ اس کے منہ لگ کر اپنا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک اور کوشش کی تھی، لیکن اس کی یہ کوشش بھی بری طرح سے ناکام ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ مجھے پتا ہے تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہے ہو، انتہائی چھچورے انسان، تم کبھی سدھر نہیں سکتے۔ میں کہتی ہوں ہٹاؤ اپنا ہاتھ میرے اوپر سے، ورنہ ایسی کی تیسی تمہاری، ورنہ کیا کرو گی تم، بولو کیا کر لو گی؟ اچانک اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے اسے اپنے نیچے کرتا پوری طرح سے اس کے اوپر آ چکا تھا۔ کمینے انسان، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے نرمی سے بات کی جائے۔ اٹھو میرے اوپر سے، تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو۔ تمہاری دادی نہ یاد کروا دی تو میرا نام بھی ردھم ساگر کاظمی نہیں۔ ارے میری بیوی کو نانو کی تو اتنی یاد آ رہی ہے کہ اپنے شوہر کو بھی اس کی دادی کی یاد دلانا چاہتی ہے، لیکن مائی ڈیئر وائفی، رومانٹک موڈ کے درمیان میں بزرگوں کو یاد نہیں کرتے، ورنہ وہ بے شرمی کی مثالیں دینے لگتے ہیں۔ اپنی بکواس بند کرو اور چھوڑو مجھے۔ اس کے الفاظ بیچ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اس کے لبوں پر اپنی قید سخت کر چکا تھا۔ صبح صبح شوہر کو اس انداز میں جگایا جاتا ہے، بیوی خوخار بلی کی طرح نہیں لگتا ہے؟ بلیوں کے ساتھ رہتے رہتے خود بھی جنگلی بلی بن گئی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے تمہیں واپس انسانوں کی کیٹیگری میں ایڈ کرنے میں زیادہ وقت ہرگز نہیں لگے گا۔ رات کو جو تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا، اس کا حساب میں ولیمے کے بعد پورا کروں گا۔ فی الحال اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں پارلر والی آتی ہوگی۔ وہ اسے آزاد کرتے ہوئے مسکراتا ہوا واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ دوسری طرف ماما آپ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہ پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ گئی تھی بیٹا، وہاں بہت سارے مریض ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے، جب تک میرا نمبر آیا تو ڈاکٹر کے اٹھنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر سے کل والا بہانہ، آپ کیوں نہیں جا رہی ڈاکٹر کے پاس؟ آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے ماما، آپ کو لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، اور بھاگ کر اس کے لیے پانی بھی لے آیا تھا۔ صرف 10 سال کی عمر میں اس کا بیٹا سمجھدار ہو گیا تھا۔ شاید آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کس قدر مشکل ہونے والی ہے۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ اس کا معصوم بچہ کہ کیا کیا دیکھنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا پتا تھا کہ یہ تو مشکلوں کی صرف شروعات ہے۔ آگے بہت کچھ ان کی زندگی میں ہونے والا ہے، وہ کیسے کرے گی ہر چیز کا مقابلہ، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جگر کی شدید تکلیف کے باعث بھی وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ڈاکٹر اسے کوئی بہت بری خبر سنانے والا ہے، وہ اس خبر کو سننے کی ہمت اور خود میں نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا بیٹا کس طرح سے سروائیو کرے گا، وہ اکیلا ہو جائے گا، اس پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور پھر یہ ناجائز کا ٹیگ۔ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے لڑ سکوں، میں اسے اس کا جائز حق دلا سکوں۔ اس کا باپ لڑتے لڑتے مر گیا، میں تو اسے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر مر بھی نہیں سکتی۔ وہ بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آیا تھا بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولا، لیکن دروازے پر موجود انسان کو دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ دوسری طرف اس کی آنکھ کھلی تو خداش اس کے بے حد پاس تھا۔ شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ اب تک نہیں کھلی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھنے لگی جب اس کا دھیان اس کے چہرے پر گیا۔ اس نے ہر کسی کے منہ سے سنا تھا کہ خداش بہت پیارا ہے، لیکن خود اس نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ بے شک ان سب چیزوں کی وجہ صرف اور صرف خداش کو زیادہ اہمیت ملنا ہی تھا۔ سچ میں اس نے کبھی اس کے دلچسپ نقوش پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ اسے بے حد قریب سے دیکھ رہی تھی۔ گھنی پلکیں اس کی آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھی، لیکن نہ جانے کیوں نیشم صرف اس کی آنکھوں کی بناوٹ میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آنکھیں کھولے اور وہ اسے دیکھ پائے۔
वो इतना पुरकशिश था, कितने दिलकश नकोश का मालिक था। वो आज फुर्सत से उसे देख रही थी। मैं जानती हूँ हुदाश, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ मैं अपनी सारी गलतियों का मदावा करूँगी। अब मैं आपको खुद से किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगी और किसी दूसरे को मैं अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त भी नहीं दूंगी। अब मैं आपको आपकी बीवी बनकर बताऊंगी, और उस दीदम को भी जिसकी नज़र मेरे शौहर पर है, उस बंदी से अच्छी उम्मीद तो मुझे कभी भी नहीं थी, लेकिन ये मेरे शौहर पर नज़र रखेगी ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब उसे ऐसे डश डश करके अपने रास्ते से हटाऊंगी कि उसे पता चलेगा कि दीशम है क्या, और उसके लिए मैं सबसे पहले आपके दिल में एंट्री लेने का कोई रास्ता निकालती हूँ। मेरा मतलब है आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब से उठ फ्रेश होने जाने लगी थी। वो मुस्कुराते हुए किचन में आई थी। उसका दिल चाहा कि वो खुदाश के लिए कुछ स्पेशल बनाया। आज पहली बार उसने अपने दिल से उसके लिए कुछ बनाने का फैसला किया था। उसके लिए नाश्ता बनाना चाहती थी। यकीनन उसकी अम्मा तो ये बात सुनकर खुश हो जाने वाली थी, जो उसे दिन रात खुदाश के खाने पीने का ध्यान रखने का कहती थी। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि अब वो कोई लापरवाही नहीं करेगी। वो अपने शौहर की ज़रूरतों का ख्याल खुद रखेगी। वो किसी भी दीदम को इस तरह अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने देगी। खुदाश खुदाश उसका शौहर था, जिसका ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ था। अगर सबका ध्यान दीदम पर गया था तो कहीं ना कहीं इसमें गलती उसकी अपनी ही थी। उसने अपनी और खुदाश की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पब्लिक कर दिया था। अगर दूसरे लोग उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं गलती उसी की थी। उसने अपने और खुदाश के रिश्ते को सीरियस लिया ही नहीं था, लेकिन बस अब और नहीं। क्या बात है, आज दीशम बीबी सुबह सुबह किचन में नजर आ रही है। हरम और दीदम टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी जब उसे अंदर आते हुए देखा। हाँ बिल्कुल जनाब, हम शादीशुदा लड़कियां हैं और शादीशुदा लड़कियां किचन में नजर आएंगी ही। मैं खुदाश के लिए नाश्ता बनाने आई हूँ, उसने अपनी माँ को देखते हुए कहा था, जो उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी थी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ बनाओ। शौहर के दिल में उतरने का सबसे आसान तरीका तो उसके मादे में एंट्री मारना ही होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सामने चीज़ें रखी थी। है ये कौन सा नया तरीका निकाला है आपने चाची, हरम ने उन्हें देखते हुए पूछा था, जबकि उसके अंदाज पर दिशम भी मुस्कुरा दी। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं जानू, तुम्हारा शौहर पूरी तरह से तुम्हारा ही है। कसम से ऐसे शौहर तो आइडियल होते हैं, एक तो इतना हैंडसम और फिर पूरी तरह से उसका दीवाना। दीदम के अंदाज में रश्क था। मैं देख कर आती हूँ जाग रहे हैं या अभी तक सो रहे हैं। वो अचानक ही उठकर किचन से बाहर निकल गई थी, जबकि उसके साथ ही चाची भी निकल गई। वो भी दीदम को पूरी तरह से नज़रअंदाज करती खुदाश के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई थी। ये तुम क्या कर रही हो हरम? वो खुदाश का नाश्ता बनाकर फारिग हुई तो हरम को किचन में आकर फ्रिज से आटा निकालते हुए देखा। उसने कभी रोटी नहीं बनाई थी, तो इस तरह का गुमान तो वो कर ही नहीं सकती थी कि वो रोटी बनाने जा रही है। अभी अम्मा ने बोला ना कि शौहर के दिल में उतरना है तो उसके खाने पीने का ध्यान रखो, तो बस मैं भी अपने शौहर के खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ। वैसे तो मैं पहले ही उनके दिल में एंट्री ले चुकी हूँ, लेकिन मेरा इरादा उनके मैदे में एंट्री लेने का है। ये शाम अहमर काज़मी की सांस सांस पर हरम का हक होगा। उनके जिस्म का एक एक पीस, एक एक इंच, एक एक जर्रे पर हरम ये शाम काज़मी का नाम लिखा होगा। वो मज़े से कहते हुए अपने हाथों को उल्टी सीधी हरकतें देती पेड़ा बनाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि दिशम उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर वो अपने शौहर पर पूरी तरह से काबिज होने के लिए क्या क्या करने वाली है। लेकिन फ़िलहाल वो उसे उसके हाल पर छोड़ते हुए खुदाश का नाश्ता देने कमरे में जाने लगी। अभी सीढ़ियों के ऊपर पहुंची ही थी कि सामने से उसे ये शाम आता हुआ नजर आया। उसे देखकर वो मुस्कुरा दी थी। वो हरम के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। गुड मॉर्निंग, नीचे चले, आपकी बेगम आपका नाश्ता बना रही है, उसने मुस्कुराते हुए उसे इन्फॉर्म किया था, जबकि शाम के चेहरे पर परेशानी आ गई थी। उफ, ये लड़की भी ना, वो उस वक्त तेज़ी से सीढ़ियों से उतरने लगा था, जबकि उसे अचानक से हरम की चीख सुनाई दी। उसकी चीख सुनते ही शाम के कदमों में तेज़ी आ गई। वो खुद भी घबरा कर नाश्ता टेबल पर रखती नीचे की तरफ भाग आ गई थी, जहाँ किचन से हरम की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो किचन में आते हुए उसका हाथ थाम चुका था, जो तेज़ी से हिलाने में मसरूफ़ थी। जल गया, मेरा हाथ जल गया शौहर सर, वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोते हुए उसे बता रही थी, जबकि वो बहुत परेशान हो चुका था। उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़े उसके हाथ का मुआयना कर रहा था। बस मेरी जान, आराम से, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। क्या ज़रूरत है तुम्हें यहाँ आने की? आओ मेरे साथ, हम अभी अस्पताल चलेंगे। चलो आओ, बस बस हम अभी चल रहे हैं। ये शाम बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस
ذرا سا چھینٹا بس گھی کا ذرا سا چھینٹا اس کے ہاتھ پر پڑ گیا ہے، چاچی نے سمجھانا چاہا۔ جی نہیں، اس کا ہاتھ جل گیا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کتنا سرخ ہو رہا ہے اس کا ہاتھ، اس نے سختی سے کہا تھا۔ نہیں، اس کا ہاتھ جلا نہیں ہے، بس ہلکا سا۔ راحت صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ بس کریں پلیز، ہلکا سا، اگر ہلکا سا کچھ ہوتا تو کیا اس کا ہاتھ اتنا سرخ ہوتا؟ کیا وہ اتنی رو رہی ہوتی؟ تم میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر کی طرف گھسیٹ کر لے گیا تھا، جبکہ راحت صاحب کچھ بول ہی نہیں پائے۔ میری بچی، میری جان، نانا جان اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکے تھے، جبکہ وہ کتنی دیر ان کے سینے پر سر رکھے خود بھی پرسکون رہی تھی، جب اچانک کمرے میں تانیہ داخل ہوئی۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ابھی آپ ان سے کوئی بات نہیں کر سکتی، آپ بعد میں آئیے گا پلیز، یہ میرا وقت ہے اور میں اپنا وقت کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ وہ تانیہ کا انداز دیکھتے نانا جان کے مزید ساتھ لگتے ہوئے بڑے مان سے بولی تھی۔ یہ صرف آپ کے تو نانا نہیں ہے کہ صرف آپ ہی ان کے ساتھ بات کر سکتی ہے، تانیہ نے کھا جانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ اس کی جلن کو محسوس کرتی وہ بڑی خوش ہوئی تھی۔ نانا جان تو یہ صرف میرے ہی ہے، البتہ آپ اپنے رشتے سے ان سے کبھی بھی کہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ وقت میرا ہے۔ نانا جان کہیے ان سے کہ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ابھی تو میں آپ کو خود کے علاوہ اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے والی۔ اس کا انداز لاڑ سے بھرپور تھا۔ وہ برسوں اپنوں سے رشتوں سے دور رہی تھی، وہ ہاسٹل میں پلی بڑھی تھی، لیکن خود سے محبت کرنے والوں سے ناز اٹھانا اچھے طریقے سے جانتی تھی، جبکہ نانا جان تو اس کے ہر انداز پر قربان ہونے کو تیار بیٹھے تھے۔ تانیہ میری جان، بچے تم بعد میں آ جانا، انہوں نے مسکراتے ہوئے تانیہ سے کہا تھا۔ لیکن دادا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اب گھر میں یہ آ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا آپ سے تعلق ختم ہو گیا، وہ کافی بدتمیزانہ انداز میں بولی تھی۔ ہائے اللہ، میں نے کب کہا کہ آپ کا ان سے تعلق ختم ہو گیا؟ میرے آنے سے کیا ہو جائے گا بھلا؟ میں تو اتنے دنوں سے نانا جان کے سینے سے نہیں لگی تھی، اسی لیے کہہ رہی تھی، لیکن اگر آپ کی بات زیادہ ضروری ہے تو آپ کر لیں۔ اس نے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے ان کے سینے سے سر ہٹایا تھا۔ اتنے سالوں سے آپ ان کے ساتھ ہی تھی نا، کیا ہو جاتا اگر تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ وقت گزار لیتی؟ لیکن آپ اپنی باتیں کریں، میرا کیا ہے، میرے تو نصیب میں ہی انتظار لکھا ہوا ہے، کر لوں گی میں بعد میں، آ جاؤں گی۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئے ان کے پاس سے اٹھنے لگی تھی جب نانا جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں میری جان، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم جب چاہے جیسے چاہے اپنے نانا جان کے کمرے میں آ سکتی ہو، ان سے باتیں کر سکتی ہو، کوئی تمہیں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور تانیہ بیٹا، آپ بعد میں آئیے گا، چلی جائے اس کمرے سے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولے جو اس کی بدتمیزی کو جانے کیسے برداشت کر گئے تھے، لیکن ان کے انداز میں وارننگ ضرور تھی کہ وہ آج کے بعد ردھم کا دل دکھانے کی وجہ ہرگز نہیں بنے گی۔ وہ کتنی ہی دیر ان کو دیکھتی رہی، جبکہ دادا جان اسے نظر انداز کرنے کے بعد ردھم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے اتنی صفائی سے تانیہ کو اپنے اور دادا جان کے بیچ سے نظر انداز کیا تھا کہ وہ خود بھی سوچ کر رہ گئی تھی کہ وہ وہاں موجود ہے بھی یا نہیں۔ یقیناً یہ اس نے کل والی بات کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ شاید اب وہ اسے یہی بتانے والی تھی کہ خاندانی کزنز ہی اگنور نہیں ہوتی، بلکہ پوتیاں بھی ہوتی ہے۔ دوسری طرف، ارے کچھ نہیں، بس معمولی سا نشان ہے، کچھ نہیں ہوتا ڈاکٹر، اس کے ہاتھ پر پڑی ہی محبت سے مرہم لگاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی سیسی اب بھی جاری تھی۔ لگتا ہے پہلی دفعہ کچھ بنانے کی کوشش کی ہے، ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے زور شور سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ میری جان، اگر آپ کو بنانا نہیں آتا کچھ تو آپ کو یہ کوشش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے ہاتھ پر مساج کرتے ہوئے ڈاکٹر نے تفصیل جاننا چاہی، کیونکہ اس کا انداز ڈاکٹر کو بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے معدے میں اترنا ہے، اسی لیے میں ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کھانا بنایا تھا، تب سیام سرد ساتھ تھے، سب کچھ انہوں نے بنایا تھا، میں نے صرف چمچ ہلایا تھا۔ اور آج توے پر پراٹھا میں نے خود ڈالا، لیکن توے پر گھی تھا جس سے میرا ہاتھ جل گیا، وہ تفصیل سے بتا رہی تھی۔ تو مسٹر شوہر، آپ کی بیوی کیا اپنے جلے ہوئے ہاتھ کے ساتھ آپ کے معدے پر براجمان ہونے میں کامیاب ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے شام کو دیکھا تھا جو کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے اس کے ہاتھ پر پھونک مارتے ہوئے اس کا درد کم کرنے کی بھی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ حرم میری جان، میرے معدے میں، میرے دل میں، میرے گردے، میرے پھیپھڑے، میرے ہر جگہ صرف تم ہی تم ہو۔ خدا کے لیے آج کے بعد کبھی بھی پراٹھا بنانے کی کوشش مت کرنا، بلکہ تم کچھ بھی مت بنانا، وہ بہت پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔
जबकि डॉक्टर अपने काम से फारिग होकर उसे एक ट्यूब लिख कर दे चुकी थी। मुझे ऐसे शौहर बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने बीवी की फ़िक्र करते हैं, और ऐसी बीवी भी जो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। मैं अक्सर ऐसे कपल्स को अलग-अलग करके एक दूसरे का ख़्याल रखने के लिए कहती हूँ, लेकिन आज मैं आप दोनों को एक साथ कहूँगी। मैंने आप दोनों जैसा प्यारा कपल कभी नहीं देखा। आप दोनों एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करने की ज़रूरत ही नहीं। आप दोनों का अंदाज़ इस बात का गवाह है कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा खुश रखे। ये मेडिसिन मैंने लिख कर दे दी है। ये ट्यूब आप 2-3 दफ़ा लगाएंगे तो इनके हाथ से दर्द के साथ साथ ये निशान भी गायब हो जाएगा। और हरम अपने शौहर की बात पर कभी मत आना। दिल में उतरने की कोशिश जारी रखो। हाँ, लेकिन हमेशा किसी बड़े को साथ रखकर ही ये कोशिश करना। इंशाल्लाह तुम जल्दी खाना बनाने में माहिर हो जाओगी। बस ये सोचना कि ये चीज़ खाकर तुम्हारा शौहर खुश होगा, तो तुम अपने आप से सीख जाओगी। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए लगन ज़रूरी होती है। और तुम में खाना बनाने का शौक़ हो या ना हो, लेकिन तुम्हें अपने शौहर के दिल में उतरने के लिए कोशिश करनी होगी। ये लगन अपने आप तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। वो बहुत मोहब्बत से उसे समझा रही थी, जबकि ये शाम जो उसे किचन में दोबारा ना जाने का कह रहा था, डॉक्टर की बात सुनकर सिर्फ उसे घूर कर रह गया था। वलीमा रात के वक्त रखा गया था, जिसके लिए सब लोग आराम से सुकून से तैयार हो रहे थे। वलीमे बहुत सारे लोग शामिल होने वाले थे। बड़े से बड़े नामवर लोगों को इनवाइट किया गया था। वो जितना एक्साइटेड कल था, आज उसकी एक्साइटमेंट मान पड़ चुकी थी, क्योंकि उसे थोड़ी देर ही पहले ही पता चला था कि आज रिदम रात को अपने घर वापस जा रही है, और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन मसला ये था कि यहाँ किसी को उसकी पसंद की परवाह नहीं थी। यहाँ अगर किसी चीज़ की परवाह थी तो ये कि ये रस्म अदा करनी है, और हर हाल में अदा करनी है। उसने तो दादा जान से ये तक कह दिया था कि रस्म आप लोग कल अदा कर लीजिएगा, लेकिन दादा जान ने फिर उसे ऐसी निगाहों से घूरा था कि वो कुछ कह ही ना पाया। और वो हसीना कैसे मज़े से सबसे प्यार ले रही थी। अमाया उससे ऐसे बातों में मसरूफ़ हुई थी जैसे सदियों से बिछड़ी दो बहनें मिली हो, और मामा तो बस उसकी बलाएं ले रही थी, और वो शर्माते हुए कभी इधर तो कभी उधर जा रही थी। अचानक उसकी नज़र उसकी तरफ उठी तो उसने शर्मा कर निगाहें झुका ली थी। उसके अंदाज पर उसे झटका लगा था। वो उससे क्यों शर्मा रही थी? समझ ना आया। कल रात को बड़े मज़े से उसके आने से पहले ही सो गई थी, तो अब उसे देखकर शर्माने की भला क्या तुक बनती थी? वो सोच कर रह गया था, और फिर उसकी नज़र जन्नत और अमाया की तरफ उठ गई थी, जो शरारती निगाहों से उसे देख रही थी। वो खामख्वाह में शर्मिंदा हो गया, और अगले ही लम्हे वहाँ से बाहर निकल गया। ये लड़की सिर्फ चुड़ैल ही नहीं बल्कि ड्रामाबाज भी थी। सब पर अपना और उसका रिश्ता बड़ी ही खूबसूरती से जाहिर कर रही थी, और सबको ये बता रही थी कि उनके रिश्ते में सब कुछ है, और वो एक परफेक्ट कपल है। उसका दिल तो चाहा कि सबको चिल्ला चिल्ला कर बताया कि कल रात उस लड़की ने उस पर कितना जुल्म किया है, उसके मासूम जज्बातों का जनाजा निकाला है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। शायद उसके जज्बात सिवाय टाइगर के और कोई नहीं समझ सकता था। वो उसके साथ उसके काफ़ी सारे रंगों को देख चुका था। वो आकर सीढ़ियों पर बैठा तो टाइगर भी उसके साथ ही आकर बैठ गया था। वो भी काफ़ी परेशान लग रहा था, क्योंकि कल उसके कमरे में भी एक और जान आ गई थी। उसके कमरे को उसके साथ शेयर करने के लिए एक कोने में उसकी खूबसूरत सी बास्केट लाकर रखी गई थी। पहले तो रिदम ने साफ इनकार कर दिया था कि वो अपनी बेटी को शायज़म के बेटे के साथ कमरा शेयर करने नहीं देगी। उस कुत्ते का क्या भरोसा, कहीं उसकी इस मासूम सी किटी को एक निवाले में निगल ना जाए। लेकिन फिर दादा जान ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और उनका भरोसा उसने एहसान करते हुए किटी की बास्केट टाइगर के कमरे में रखने की इजाज़त दे दी थी। और टाइगर साहब अपना कमरा एक बिल्ली के साथ शेयर करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। ये क्या है और मेरे कमरे में क्यों है? मैं नाश्ता नीचे करता हूँ सबके साथ। वो नहा कर निकला तो टेबल पर नाश्ता देखा, साथ ही बेड पर उसके कपड़े भी बिल्कुल तैयार थे। एक दिन कमरे में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने इतने प्यार से आपके लिए नाश्ता बनाया है, और खबरदार जो आपने इग्नोर करके कहीं भी गए। चले बैठे और आराम से खाए। वो उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ खींचने लगी थी। उसने हैरत से पहले उसके चेहरे को देखा, और फिर अपने हाथ को। उसके अंदाज पर दिशम के हाथ की गिरफ्त हल्की पड़ गई थी। देखो लड़की, मेरे साथ ये ड्रामेबाजी करना बंद करो। मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आज तुम मेरे कमरे से चली जाओगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम इस तरह की हरकतें नहीं करोगी। वो बेड पर पड़े कपड़ों को देखते हुए बोला था।
मैं तो करूँगी और रोज़ करूँगी, और मैं अपना कमरा छोड़कर क्यों जाऊँगी? वजह मैं शादी करके कमरे में आई हूँ जनाब, पर प्रॉपर रुखसती हुई है मेरी, और मैं ये कमरा छोड़ने वाली हरगिज़ नहीं हूँ। बेशक आप मुझे धक्के मार कर निकाले, तब मैं रात को वापस इस कमरे में आ जाऊँगी। और ये कपड़े मैंने बहुत मोहब्बत से तैयार किए हैं, प्लीज़ यही पहनकर बाहर आइएगा, और नाश्ता भी बहुत मेहनत से बनाया है, उम्मीद करती हूँ कि आप ये ज़रूर खाएंगे। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि खुदाश उसकी हरकत पर अच्छा खासा हैरान हुआ था, और वो एक नज़र कपड़ों पर डालकर सोफे पर बैठकर नाश्ता करने लगा। दूसरी तरफ आप यहाँ, वो हैरान से उसके दरवाजे पर खड़े शख्स को देख रही थी। बाहर क्यों खड़े हैं, आइए अंदर आइए प्लीज़, उसने पूरा दरवाज़ा खोलते हुए उन्हें अंदर आने के लिए कहा था। वो इंग्लिश में बात कर रही थी, इसका मतलब ये था कि आने वाला जो भी था वो उर्दू नहीं बोलता था, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उससे उर्दू में बात करती थी। नहीं, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को लेने के लिए आया हूँ। मेरी बच्ची, चलो अपने घर वापस चलो, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है। वो बहुत मोहब्बत से उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि ये शाम भी समझ गया था कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका नाना है। आई एम सॉरी डैड, अगर आप उस शर्त के साथ मुझे यहाँ से लेने के लिए आए हैं कि मैं अपना मज़हब छोड़ दूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपना मज़हब किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। मैं और मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, उसने उन्हें देखते हुए कहा था, जबकि वो थोड़ी देर पहले जो उससे मोहब्बत जता रहे थे, अब उनकी आंखों में आहिस्ता 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 गुस्सा गर्दिश करने लगा था। बस कर दो, जिस शख्स के लिए तुमने अपना मजहब छोड़ा, वो तुम्हें दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया है। एक बच्चे के साथ कैसे रहोगी इस शख्स के सहारे सारी जिंदगी? वो चला गया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अजाब कर गया है। वो काफी गुस्से से बोल रहे थे, जबकि वो खामोशी से उन्हें सुन रही थी, लेकिन उनकी आखिरी बात पर वो मुस्कुरा दी। मैंने उस शख्स की खातिर कुछ भी नहीं किया डैड, मैंने अपना मज़हब अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, क्योंकि मुझे उसमें कोई कशिश महसूस नहीं होती थी। लेकिन इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के बाद मैंने अपने खुदा को पा लिया, और मैं वापस कभी उस गुमराही के रास्ते पर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे आखिरी सांस ही क्यों ना आ जाए। और ना ही मैं अपने बेटे को कभी भी उस गलत रास्ते की तरफ जाने दूंगी। मेरा बेटा मुसलमान है, और हम मुसलमान ही मरेंगे। वो फ़ख्र से सर उठाकर बोल रही थी, जबकि उसने लड़ने झगड़ने के बाद उसके डैड वापस चले गए थे, वो उसे समझाने में नाकाम हो गए थे। दूसरी तरफ अम्मी, वो मैं क्या कह रही थी कि मैं खुदाश के आज की रात के कपड़े तैयार कर दूं। दिशम ने हाल हाल में कदम रखा तो उसे दीदम की आवाज़ सुनाई दी थी। अजीब सी चहक थी उसकी आवाज़ में, जो उसे बुरी तरह से जला गई थी। क्यों दीदम, क्या उनकी बीवी वफात पा चुकी है? जो उनके काम तुम करोगी? उसका अंदाज तंजिया था, वो उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं रखती थी, बस बहुत नज़र रख ली थी उसने उसके शौहर पर। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा दीदम। दीदम ने पीछे से अचानक उसे आते देखकर कहा था, यकीनन अब वो उसकी बेइज्जती करने वाली थी। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि मैं तैयार कर देती हूँ उनके कपड़े, तुम बिजी होगी ना। जाने क्यों आज कल दीदम को कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ता था। दिशम की आंखें उसे हर वक्त खौफ में मुब्तला करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो अभी कुछ उठाकर उसके सर पर दे मारेगी। यही वजह थी कि वो उससे ज़रा दूर दूर बचकर ही रहती थी। मैं इतनी भी मसरूफ़ नहीं हूँ कि अपने शौहर का ख्याल ना रख सकूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके कपड़े रेडी कर आई हूँ, फ़िलहाल वो नाश्ता कर रहे हैं, तैयार होकर थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे, और रात के लिए उनका सूट भी मैंने तैयार करके रख दिया है। वो तो तुमसे खफा है ना। अब मेरा नहीं ख्याल कि जब वो किसी से नाराज़ होते हैं तो उसके हाथ से कुछ भी लेते हैं। तुम्हें याद है एक दफ़ा वो मिशल आपी से नाराज़ हो गए थे तो उनके हाथ का खाना भी नहीं खाया था। मुझे तो लगता है कि उन्होंने तुम्हारे हाथ से बनाए हुए नाश्ते को भी करने से इनकार कर दिया होगा, और वैसे भी वो रूम में नाश्ता नहीं करते। अजीब बीवी हो तुमसे ज़्यादा तो उनके बारे में मैं जानती हूँ। दीदम के अंदाज में तंज था। जब अचानक ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आया, दिशम के लबों पर गहरी खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई थी। आखिर उसने ना सिर्फ उसके हाथ से नाश्ता कर लिया था, बल्कि उसके रखे हुए कपड़े भी पहन लिए थे। दीदम डार्लिंग, बहन और बीवी में बहुत फ़र्क होता है। बहन से नाराज़ होना, उसको नखरे दिखाना भाइयों का हक है, और मियाँ बीवी में नाराज़ होने का हक बीवी रखती है। शौहर का फ़र्ज़ उसे मनाना होता है, नखरे दिखाना नहीं। हो बड़े मज़े से कहती खुदाश की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। उनके दरमियान जो भी चल रहा था वो कम अज़ कम दीदम के सामने लाने वाली नहीं थी। उसका शौहर उससे नाराज़ था, उसे नखरे भी दिखा रहा था, लेकिन ये बात सबको क्यों बताए? ये सब कुछ तो उनका प्राइवेट था। खुदा के लिए छोड़ दो इस मासूम को, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा कि उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। उसकी आंखों में आंसू थे, मुसलसल मिन्नतें कर रही थी जब शायज़म ने ऊपर कदम रखा।
کتنی پیاری ہے وہ، مجھے لگا تھا کہ تم دونوں بھائی بہن بن کر رہو گے، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ تم اس معصوم کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے۔ ذرا دیکھو تو اس کو، کتنی خوبصورت ہے وہ۔ ہاں، دیکھنے میں تو بہت پیاری اور بہت معصوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بہت ہی میسنی ہے۔ کل سے اس نے میرے معصوم ٹائیگر کو تنگ کر رکھا ہے۔ تم کچھ نہیں جانتی، اتنی چالاک ہے نا یہ لومڑی۔ شٹ اپ، وہ لومڑی نہیں بلی ہے، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں وہی بلی، اتنی چالاک ہے نا وہ بلی کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اس نے ٹائیگر کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ارے اتنا تنگ تو کوئی بیٹی بھی اپنے باپ کو نہیں کرتی ہوگی۔ میرا معصوم سا بچہ جب سے تمہاری اس چالاک بلی کے چکر میں آیا ہے نا، بہت بری حالت ہے، پورے کمرے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ جائیداد میں اپنے بیٹے کے نام لکھوں گا۔ تم اپنی جائیداد کو اپنے بیٹے کے نام لکھو یا اپنی قبر میں ساتھ لے جاؤ، میری بیٹی کو تمہاری جائیداد کا کوئی لالچ نہیں ہے، سمجھے تم؟ بس جا کر اپنے اس کتے کو کہو کہ میری کٹی کو اپنے منہ سے دور رکھے۔ کیسے الٹا پکڑ کر رکھا ہے اس نے، وہ معصوم چیک کیسے چیخ رہی ہے، وہ اسے دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ میرا ٹائیگر ہے، کتا نہیں، اور میرا ٹائیگر بھی اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ وہ نیچے جا رہی تھی تو اس نے اس کی حفاظت کی ہے۔ نہیں چاہیے تمہارے کتے کی حفاظت، اور کتے کو میں کتا ہی۔ باؤ باؤ، ٹائیگر کی گرجدار آواز پر وہ اچھل پڑی تھی۔ دیکھو تمہارا کتا کیسے بھونک رہا ہے، میرا مطلب ہے تمہارا ٹائیگر۔ پلیز میری کٹی۔ وہ اسے راکشس روپ میں دیکھ کر اسی کی منت پر اتر آئی تھی، جس پر شاہزم نے ترس کھاتے ہوئے اس کی کٹی کے پٹھے کو اس کے منہ سے نکالتے ہوئے اس کی گود میں پھینکنے والے انداز میں گرایا تھا اور اپنے ٹائیگر کو لے کر نیچے چلا گیا تھا۔ دوسری طرف آدھی رات کا وقت تھا جب اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ماں اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنی ماں کے بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے پورے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو وہ اسے دور ڈیسک پر بیٹھی نظر آئی۔ یشی تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس وہاں پہنچا تھا، جو وہاں ڈیسک پر بے حال پڑی مسلسل رو رہی تھی۔ شاید وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس سے اتنی دور آ کر اپنی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ماں کو تکلیف تھی اور اس تکلیف کو وہ سمجھ رہا تھا۔ ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آئیے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں میری جان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، تم تو بیکار میں پریشان ہو رہے ہو۔ میں تو ٹھنڈی ہوا کھانے یہاں آئی تھی، اندر اچھا فیل نہیں کر رہی تھی نا، تم بیکار میں گھبرا رہے ہو۔ چلو گھر چلتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف چلتی تھی، لیکن اس کے چہرے کی تکلیف سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی ماں کس حال سے گزر رہی ہے، لیکن اس کی ماں اس کی بات کو سمجھتی نہیں تھی۔ دوسری طرف میرا پیارا بھالو، تمہارا ہاتھ اب کیسا ہے؟ وہ حرم کے پاس آ کر اس کا ہاتھ دیکھنے لگا تھا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، وہ یہ شام نے آئس کریم کھلائی تھی نا، تبھی ٹھیک ہو گیا تھا، اس نے بڑے مزے سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ اس نے یہ شام کو ایک نظر دیکھا جو اس کے آنے سے پہلے تو اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا، لیکن خداش کے آ جانے کی وجہ سے اس نے اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مرکوز کر لی تھی۔ پھر تو اور بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، میرا مطلب ہے تم نے اس کے لیے پراٹھا بنانے کی کوشش کی ہے، تمہیں اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے لے کر گیا، تو ممکن ہے تمہاری ایک اور کوشش پر وہ تمہیں کہیں اور لے جائے۔ بلکہ ایسا کرو کہ آج تم اس کا فیوریٹ کھانا بنانے کی کوشش کرو، اور انگلی کی بجائے ہاتھ جلانا، اور پلیز تھوڑا سا زیادہ جلانا۔ تم اس کے بھائی ہو یا دشمن؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ یہ شام نے اس سے پوچھ لیا۔ حرم تو کچھ حد تک بیوقوف تھی، لیکن اس کا بھائی بھی اس کے جیسا ہی تھا، جو اپنی بہن کو ایسے الٹے سیدھے مشورے دے رہا تھا، اور حرم جو اتنے زیادہ سنجیدہ انداز میں اسے سن رہی تھی، اسے یقین تھا حرم اب دوبارہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ یار ہوں تو بھائی ہی، بس مزاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہو گئے، اس نے ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، تو یہ شام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ خداش اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر میچ دیکھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ باقی سب کے ساتھ اتنا جلدی گھل مل نہیں سکتا، لیکن اسے اپنی فیملی کا حصہ بنانا خداش اپنا فرض سمجھتا تھا۔ دوسری طرف نہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ہسپتال ضرور جائیں گی، اگر آپ نے ہسپتال جانے میں آج ذرا سی بھی بہانہ بازی کی تو میں آپ سے بالکل نہیں بولوں گا۔ وہ اسکول کے لیے تیار ہو کر بیٹھا تو کنیز اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ اس سے وعدہ بھی کر رہی تھی کہ وہ آج ہسپتال ضرور جائے گی، لیکن وہ اپنی ماں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ارے میری جان، میں وعدہ کر رہی ہوں، میں آج ہسپتال ضرور جاؤں گی، اب میں اپنے بیٹے کو شکایت کا بالکل موقع نہیں دوں گی، بس اب تم مجھ سے ناراض مت ہونا۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگی۔
चलो मेरी जान, अब खाना खाना शुरू करो। जब तुम ठीक से खाना नहीं खाते, मुझे सारा दिन तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। वो उसे खाना निवाला बनाकर खिलाते हुए बोल रही थी, जबकि अपनी माँ की मोहब्बत को देखकर उसने मुस्कुराते हुए मुंह खोला था। मामा बाबा क्यों चले गए हमें छोड़कर? काश वो आज हमारे साथ होते, सब कुछ अच्छा चल रहा था ना। वो अक्सर उनकी बातें करता था। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, आज नहीं तो कल हम सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है। हम गए हुए लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनकी मगफरत की दुआ के। तुम भी अपने बाबा के लिए दुआ किया करो। दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्हें आला मकाम दे। वो उसका माथा चूमते हुए मोहब्बत से समझा रही थी। मामा, बाबा ने आपसे वादा किया था ना कि वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने वादा खिलाफी कैसे कर ली? उसने फिर से पूछा। अरे, तुम्हें किसने कहा कि उन्होंने मेरे साथ वादा खिलाफी की है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह वो आखिर में भी मेरा साथ निभाएंगे, और देखना, आखिरत के दिन हम एक बार फिर से साथ होंगे। मामा, बाबा को किसने मारा? उसकी बात को समझते हुए उसने फिर से एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब वो नहीं जानती थी। पुलिस का कहना था कि अहमद मरा नहीं है, बल्कि पूरे प्लानिंग के साथ उसका कत्ल किया गया है। वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन इस बात का जवाब कनीज के पास नहीं था। वो कुछ नहीं जानती थी, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसे राहिल पर शक जरूर था। बस अब बातें खत्म, जल्दी जल्दी चलो, वैन आने वाली है तुम्हारी। वो उसके सामने से बर्तन हटाते हुए उसका हाथ थाम कर उसे बाहर ले आई थी। सामने से बस आती नजर आई तो वो उसे खुदा हाफिज करता नीचे वाली सड़क पर जाने लगा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए वापस अंदर जाने लगी। अभी वो दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी जब अचानक कोई अंदर आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? वो गुस्से से देखते हुए बोली थी। हिम्मत तो तुम्हें मैं अब दिखाऊंगा अपनी कनीज फातिमा। बहुत सब्र कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोला था। कनीज ने उसकी नीयत को समझकर चीखना चाहा, लेकिन वो उसके मुंह पर अपना हाथ दबाकर रख चुका था। दूसरी तरफ, ये तुम क्या कर रही हो लड़की? एक रात के लिए जा रही हो तो इतना सामान लेकर जा रही हो? और वैसे भी तुमने मुझसे पूछा नहीं जाने का। मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ। सबसे पहले तुम्हें मेरी इजाज़त लेनी चाहिए। मेरी इजाज़त के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। वो कमरे में आया तो उसे सामान पैक करते हुए देखकर नॉन स्टॉप बोलता ही चला गया, जबकि वो मुसलसल उसकी किसी बात को अहमियत दिए बिना अपने काम में मसरूफ़ थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अब इतना भी इग्नोर मत करो। उसे मुसलसल अपने ही काम में मगन देख कर वो फिर से बोला था। और तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा तुम्हारे मुंह लगने का कोई इरादा नहीं है। उसने जैसे बहुत पते की बात बताई थी, लेकिन अगले ही लम्हे शायद हम उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने बेहद करीब कर चुका था। इतने दूर से भी मैं तुम इतने दूर से मैं भी मुंह लगना पसंद नहीं करता, वो तो पास से लगा जाता है। और उसकी थोड़ी को पकड़ते हुए बोला, जब अगले ही लम्हे उसने जोरदार उसके हाथ पर मारते हुए उसे खुद से दूर किया था। मेरा तुमसे लड़ने का भी कोई मूड नहीं है। वो उसे धक्का देते हुए अपने सामान की तरफ मुतवज्जा हुई थी। मैंने शादी लड़ने के लिए वैसे भी नहीं की, लेकिन तुम्हारी बात को भी मैं समझ सकता हूँ। किसी शायर ने खूब कहा है, कुंवारे सड़ सड़ कर मरते हैं, शादीशुदा लड़ लड़ कर मरते हैं। लेकिन डार्लिंग, इस कैटेगरी में मैं हरगिज नहीं आता। मैं तो प्यार करके मरने वालों में से हूँ। उसने कहते हुए एक जानदार बोसा उसके लबों पर दिया था। कमीना छिछोरा, मुझे पहले ही यकीन था तुमने ये शादी की ही छिछोरी हरकतों की वजह से है। अपने होठों को साफ करते हुए वो उससे दूर हो गई थी। क्या बात है, इन बातों के बारे में पूरी मालूमात रखी हुई है तुमने? और क्या क्या जानती हो? मुझे भी बताओ ज़रा, मैं इन मामलों में ज़रा अनाड़ी हूँ। वो जिन नज़रों से उसे देखते हुए बोला था, उसका दिल चाहा कि एक मुक्का मारकर उसके सारे दांत तोड़ दे। हाँ अनाड़ी साहब, मारिया तो आपकी बाजी थी ना। वो गुस्से से उसे घूरती धक्का देती कमरे से ही निकल गई थी। उसका शक दुरुस्त था, ये सब मारिया की वजह से ही खराब हुआ था। दूसरी तरफ, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, जाने दो मुझे, जाने दो। मैं तुम्हारे सगे भाई की ना सही कज़िन तो, लेकिन तुम्हारे कज़िन की बेवा हूँ। मेरे साथ ऐसा करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्यों गुनहगार हो रहे हो? कल हश्र के दिन अपने भाई जैसे कज़िन का सामना कैसे करोगे? खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म मत करो, मुझे पाक रहने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ये जुल्म मत करो कि मैं पहले ही दुनिया को मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। पहले ही अपने बच्चे के लिए उसके बाप के नाम पर लड़ रही हूँ। खुदा के लिए मेरे साथ ये जुल्म मत करो। वो मुसलसल उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन राहेल तो ज़मीनी खुदा बना हुआ था। उसे ना तो उसके वास्तों की कोई परवाह थी और ना ही उसकी मिन्नतों की। मैंने तुझे कहा था मेरे पास आ जा, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन तुझे तेरे शौहर के साथ वफा निभानी थी ना। उसे तो मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। अब तेरी बारी। बहुत तड़पाया है तूने आज
तूने तूने मुझे, आज मैं अपनी तड़प को ख़त्म करूँगा। तेरे इस हसीन बदन पर अपने नाम की मोहर लगाऊंगा। आज तक मैंने जिसे चाहा उसे हासिल किया, सिर्फ तू ही थी जो मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी। लेकिन अब मुझे तेरा इंतज़ार नहीं करना, अब मैं जो चाहूँगा वो होगा। आज मैं तुझे बताऊँगा कि तुमने किसके मुँह पर तमाचा मारा था। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी पाकिज़गी पर, आज मैं तुझे गंदा कर दूंगा। तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, आज मैं तुझे ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि जो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सारी जिंदगी मुंह छुपाते फिरती रहेगी तू। और जहाँ तक तेरे शौहर के भाइयों की बात है, तो उन पर तो ये कभी साबित नहीं कर पाएगी कि तू अहमर की बीवी है, क्योंकि तेरा निकाहनामा और बाकी सारे कागजात मैंने गायब किए थे। मैंने उन लोगों पर भी ये बात साबित कर दी है कि तेरे शौहर से कोई निकाह नहीं हुआ था। और साथ साथ ये भी कि उनके भाई को मारने के पीछे तेरा हाथ है। तेरी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी और अहमद को सब कुछ पता चल गया था। तुम मरने के बाद कभी पाक औरतों में शामिल नहीं होगी, क्योंकि अब वो लोग यहाँ कभी वापस आएंगे ही नहीं। उनका भाई मर गया, अब वो तुझसे और तेरे बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। लेकिन मैं रखूंगा तुझसे ताल्लुक़, क्योंकि बहुत आग लगाई है तूने इस दिल में, और अब इस आग को ठंडा भी तू ही करेगी। वो उस पर झपट पड़ा था। उसके दोनों बाजुओं को कैद करते हुए वो उससे उसका मान लूट रहा था, उससे उसकी आबरू छीन रहा था, उससे उसकी सारी जिंदगी की कमाई, उसकी चादर लूटने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक किसी ने उसके सर पर एक जोरदार लोहे का रॉड मारा था। और फिर मारता ही चला गया। राहिल, जो पहले लगने वाली ज़रब पर भी खुद को होश व हवास में ना रख सका था, धड़ धड़ धड़ाधड़ लगने वाले रॉड ने उसका हाल बिगाड़ दिया था। इशी, इशी छोड़ दो इसे, इशी बेटा छोड़ दो, वो मर जाएगा। कनीज चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो मुसलसल उसे मारते जा रहा था। वो इतना गुस्से में था कि कनीज के पकड़कर पीछे घसीटने पर उसने कनीज को भी धक्का मार दिया और एक बार फिर से उस लोहे के रॉड को राहिल के सर के बीचों बीच मारने लगा। पूरा फर्श राहिल के खून से भर चुका था, लेकिन उसका जुनून कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो शायद उसे जान से मार देना चाहता था। चटाक, ईशी, बस करो, वो मर गया है वो। कनीज उसे पीछे खींचते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती उसे वो बताने की कोशिश कर रही थी, जिस पर वो खुद भी यकीन नहीं करना चाहती थी। मर गया वो, देखो उसे वो मर गया, देख मार दिया तुमने उसे। वो उसे झंझोड़ते हुए बता रही थी। अच्छा हुआ मर गया, अगर नहीं मरता तो मैं मार देता। वो उसी अंदाज में बोला था जबकि कनीज ने उसके लबों पर हाथ रखते हुए उसे खुद में भींच लिया था। उसे खुद से लगाया मुसलसल रो रही थी। क्या होगा अब? दुनिया उसके बेटे को कातिल कहेगी। राहिल मर गया, दुनिया छोड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब उसके बेटे की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वो खुद को अहमद काज़मी की बेवा साबित नहीं कर पाएगी, अपने बेटे को अहमद काज़मी का बेटा साबित नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो जानती थी कि दुनिया उसके बेटे को कातिल साबित करने में एक मिनट नहीं लगाएगी। वो अपने बेटे की ज़िंदगी ख़राब होते नहीं देख सकती थी, इसलिए हिम्मत पकड़ी और उठकर बैग निकालते हुए 2-4 सूट उसमें डालने लगी। उसने एक नज़र अपने बेटे को देखा था, जो अब मुझ तक मुसलसल राहिल की लाश को गुस्से से घूर रहा था, जैसे उसमें दोबारा जान आ जाए तो वो उसे दोबारा से मार डाले। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वॉशरूम में लेकर आई। उसके हाथ पैर अच्छे से धुलाकर उसने उसके कपड़े बदले और फिर उसी तरह उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकल गई। दरवाजे को ताला लगाया। अब वो कहाँ जाने वाली थी ये वो भी नहीं जानती थी। दूसरी तरफ 3 दिन गुजर चुके थे उनको भागते हुए। वो खुद भी नहीं जानते थे कि उनकी मंजिल क्या है और उन्हें कहाँ पहुँचना है। बस वो एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी बस पर बैठ रहे थे। उनकी कोई मंजिल नहीं थी, उनको कहाँ पहुँचना था, कहाँ जाना था, कोई नहीं जानता था। वो बस इस सफ़र को मुसलसल जारी रखे हुए थे। कभी उनकी रात सड़क पर गुजरती तो कभी वो बस में ही सो जाते। कनीज के पास जितने पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा पाती। वो लोग घर से काफ़ी आगे निकल चुके थे। वो अंदाज़ा लगा पा रही थी कि उसके घर की इस वक्त क्या हालत होगी। यकीनन पुलिस उन्हें जगह जगह ढूंढ रही होगी और मुमकिन था कि उनके बारे में पता लगाकर उनके पीछे ही आ रही हो। वो अपने बेटे को कैसे बचाया, उसके मुस्तकबिल को किस तरह बर्बाद होने से रोके, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसे अपने साथ लगाए भाग रही थी, लेकिन वो जानती थी कि भागना हर मसले का हल नहीं है। आज नहीं तो कल पुलिस उन तक पहुंच जाएगी और फिर जेल की 4 दीवारी में उनकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। उन उसकी ज़िंदगी कितनी थी वो नहीं जानती थी, लेकिन अब सांस उसे तंग करने लगी थी। वो अपनी हर अंदरूनी सांस से बेचैन होने लगी थी। तकलीफ़ कभी कभार हद से बढ़ जाती, अब उसे अहमद की बातें ठीक लगने लगी थी।
دوسری اولاد کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی جو شاید وہ کر سکتی تھی، لیکن اس کی بیماری میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ان سخت دوائیوں کا تھا جو اس نے استعمال کی تھی، اور اب وہی دوائیاں اس کی زندگی کو موت کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس وقت تو اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر شاید کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر اسے موقع ملے تو اب وہ اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش ضرور کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اپنے بیٹے کا واحد وہی سہارا تھی۔ اگر اس مقام پر آ کر وہ اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ جاتی تو اس کا بچہ برباد ہو جائے گا۔ ایک ناجائز ہونے کا ٹیگ اوپر سے اگر وہ بھی اسے چھوڑ جاتی ہے تو کیا بچتا اس معصوم سے بچے کے پاس؟ اس کا بچہ چھوٹا سا تھا، کس کس سے لڑتا، کس کس کو ثابت کرتا کہ وہ احمد کاظمی کی اولاد ہے، اور جو غلطی وہ کر آیا تھا اس کے بعد تو شاید اس کی زندگی برباد ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ بالکل خاموش تھا، جیسے سکون میں ہو۔ اس کی ماں جو کہہ رہی تھی وہ وہی کرنے میں مصروف تھا، خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہے اس کے ماضی کی کہانی اور کیا ہوگا اس کے حال میں اور مستقبل میں اور اس کے کلائمیکس میں۔ تو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میری پڑھی ہوئی سٹوریز پسند آتی ہے تو پلیز اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔